Hello students, how are you? I hope that you all are fine and fit at your homes. Dear students, as you all know that our midterm exams are approaching. Got it? So we are revising our syllabus so that you can score good marks in midterm exams. Okay? So in this video today we will revise our fourth chapter, which is chapter number 4, structure of atom. Got it? And today I will summarize whole chapter in this video. I will try to summarize the whole chapter in this video, and we will understand what are the main concepts of this chapter and what are the uh, basic things which you should all know. Okay, so let's start our fourth chapter, structure of atom. Okay, let's start. So our fourth chapter is the structure of atom. In this video we will cover first point, Dalton's atomic theory, or we can say that Dalton's postulates. Dear students, postulates means assumptions. ठीक है, उसने क्या क्या assume किया था, predict किया था. Got it? Next we will discuss different models of atoms. Okay, the scientists which gave different models related to structure of atom, and in the model classification, in the models category, we will discuss about Rutherford's atomic model, Niels Bohr atomic model, and after Niels Bohr atomic model we will discuss about what is atomic number, what is atomic mass, what are isotopes, what are isobars, and what are isoelectronic species. Okay? And this is how I will summarize my chapter, and let's discuss. So we will start our first point, which is Dalton's atomic theory. Got it? Okay. Yes. The Dalton, which is father of atom, you can say that. Dalton gave an atomic theory. Okay. And in this theory, he predicted that the smallest part of element is atom, and which cannot divide further. Okay. He explained that a term means divisible, a means not, जो डिवाइड ना हो सके, दिस इज कॉल्ड एटम. ओके, डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, और जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. और उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट के एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. ओके, सेम नेचर के होते हैं. और उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं. ठीक है, सेम नहीं हो सकते. लेकिन दीज पोस्टुलेट्स कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम्स आर इनडिविजिबल, एंड एक ही एलिमेंट के जो सेम एटम्स हैं वो केमिकली सेम होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. ये सब बातें एंड में जाके थोड़े दिनों बाद और साइंटिस्ट ने इनको आपको गलत प्रूव कर दिया उनको कि ऐसा नहीं है. एटम्स आर डिविजिबल. एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और आइसोटोप के केसेस में एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो, और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, तो प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो गई ना उनकी. ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं, जबकि उन्होंने कहा सेम नहीं हो सकते हैं. सो उनके जो पोस्टुलेट्स थे उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स कह लो या गलत प्रूव भी हो गए थे वो सारे पोस्टुलेट्स. ओके, सो दीज वर ऑल दी पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर जानने के लिए
एटम क्या है ये जानने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए थे. These points are called as postulates. Okay, assumptions. उन्होंने जो जो पॉइंट्स कहे उनको हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा. और थोड़े दिनों बाद वो जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कुछ करेक्शंस किए गए कि ऐसा नहीं है जो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट. और डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल समराइज the models of atoms. Okay, atomic structure. What is atomic structure? एटम होता कैसा है, जबकि एटम खुद इतना छोटा सा है. एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एटम का डिवीजन कैसे होता है, एटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं. गॉट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें कि व्हाट वाज द फर्स्ट एटम मॉडल ऑफ एटम, देन जे थॉमसन. J.J. Thomson describes the structure of atom, and he explained that, or he described that atom is basically surrounded by positive charge and negative charge. उन्होंने कहा कि ये जो एटम होता है वाटरमेलन की तरह होता है, पुडिंग की तरह होता है. जैसे कि वाटरमेलन में जो ब्लैक सीड्स होते हैं और जो रेड ईडेबल पोर्शन होता है, तो उन्होंने कहा कि जो रेड पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव है स्फीयर, और जो आपके ब्लैक सीड्स होते हैं वो आपके नेगेटिव स्फीयर है. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड रहता है, उसमें एम्बेडेड रहता है पॉजिटिव स्फीयर में. तो दिस इज हाउ एटम स्ट्रक्चर वाज प्रिडिक्टेड बाय जे थॉमसन. लेकिन इसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं हुआ. इतने सारे होते हैं क्या, ब्लैक सीड्स जितने हैं उतना नेगेटिव चार्ज होता है क्या एटम में, तो ये चीजें क्लियर नहीं थी. इन चीजों को क्लियर करने के लिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट वाज रदरफोर्ड मॉडल. ओके, तो रदरफोर्ड्स मॉडल या हम कहें उनका एक्सपेरिमेंट क्या था एटम के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने आपकी एक गोल्ड फॉइल ली. ओके, क्योंकि क्या होता है अगर हम किसी चीज के एटम किसी भी स्मॉलेस्ट चीज का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो हमने वो थिनेस्ट मटेरियल लिया कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है. तो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने गोल्ड की एक फॉइल ली. ओके, बिकॉज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल मेटल. सो उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली और उस पे उन्होंने डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की. ओके, गोल्ड फॉइल ली उन्होंने, हमने एक एटम ले लिया है गोल्ड का और उन्होंने हीलियम पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की. तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उसने क्या देखा, और इसको हमने अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं इनको. ओके, तो उन्होंने क्या देखा, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, इसके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा उन्होंने. तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो हैं अल्फा पार्टिकल्स, ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई. तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई जो एटम का स्ट्रक्चर है वो एम्प्टी है. मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी. ओके, तभी तो ये बिल्कुल क्रॉस ओवर हो गई. कुछ अल्फा पार्टिकल्स किसी चीज से टकराकर वापस आ गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से डिफ्लेक्ट हो गए. तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जर्वेशंस देयर इज समथिंग इन बिटवीन, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं टकरा के वापस आ रही हैं. और ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो रिपेल होके वापस आ रही हैं. वापस क्यों आ रही हैं ये, गॉट इट. तो इसका मतलब देयर इज समथिंग इन बिटवीन विच इज वेरी सॉलिड एंड हैज पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज
अल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, ओके, और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है। और ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वो एम्प्टी है, बीच में है कुछ सॉलिड पार्ट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उन्होंने ये कहा कि most of the part of the atom is empty, okay. Second, he said that there is something in between, okay. Next he said that there is positive charge present in between, ठीक है। तो उन्होंने इस सॉलिड पार्ट को एक नाम दिया न्यूक्लियस का, और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इस एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला कि एटम के बीच में एक सॉलिड पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कहलाता है प्रोटॉन्स, ठीक है। ओके, कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड इसको हम सिंबल देते हैं स्मॉल p से, गॉट इट। तो उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, गॉट इट, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है और स्मॉल e से डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चार्ज नेगेटिव होता है, वो भी 1 नेगेटिव -1, ओके, 1 नेगेटिव, एंड इनका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत हल्के होते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो फिर भी थोड़े से हैवी होते हैं, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की कुछ डिसएडवांटेजेस थी। क्या डिसएडवांटेजेस थी? ये डिसएडवांटेजेस थी कि उन्होंने ये तो कह दिया कि पॉजिटिव के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन अब जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर गिर जाना चाहिए ड्यू टू अट्रैक्शन, बिकॉज वी नो दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। और एटम को खत्म हो जाना चाहिए। वाई एटम्स आर स्टेबल? क्यों एटम्स स्टेबल होते हैं? तो ही could not explain about the stability of atom, ठीक है, he was unable to explain the stability of atom, got it। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक और मॉडल आया, उस मॉडल को कहा गया बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इस डिसएडवांटेज को कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे पहली बार कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ वो घूमते हैं?
electrons revolve around the nucleus okay in a particular shell called as orbits। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है ग्रुप में रिवॉल्व करते हैं, वो अपनी अपनी क्लासेस में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ क्लासेस पाई जाती हैं और उनको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इन शेल्स का जो नाम होता है वो होता है KLM एंड N एंड नंबरिंग होती है इनकी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। These orbits are numbered as 1 2 3 and designated as has the shell name KLMN। ठीक है, तो उन्होंने दो चीजें बताई हमें अभी कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, दूसरा इन ऑर्बिट्स का नाम होता है KLMN और इनकी जो नंबरिंग होती है 1 2 3। गॉट इट। तीसरा थर्ड उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे हम, ये है आपका न्यूक्लियस और ये है इसके शेल्स KLM एंड N। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते चले जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ओके, तो हम क्या कहें कि न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, इनकी पर्टिकुलर अपनी एक क्लास होती है, शेल होते हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे शेल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब के शेल की, के ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी, एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, एन की सबसे ज़्यादा। और जिस शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। इसका मतलब एनर्जी तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है और स्टेबिलिटी उल्टी डायरेक्शन में। जैसे कि अगर हम एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करेंगे, जल्दी निकल जाएंगी, तो स्टेबिलिटी कम है। इसका मतलब जिस शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। इसीलिए किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन होती है तो जो लास्ट शेल होता है, क्योंकि उस शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो लास्ट शेल के में से इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट होते हैं। कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। तो इसका मतलब उन्होंने एनर्जी के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे when we go far from the nucleus, okay, then energy increases and stability decreases। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे उन्होंने कहा कि जब ऑर्बिट्स के चारों तरफ, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इसमें अपनी वो ना तो एनर्जी लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ना ही एनर्जी गेन करते हैं। तो उस शेल की एनर्जी फिक्स रहती है। ठीक है, और एनर्जी ना तो गेन करते हैं वो, ना ही लूज करते हैं। केवल क्या करते हैं, सपोज ऐसे याद रखो,
ये लोअर शेल है और ये हायर शेल है, ठीक है। इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब कर लेता है कहीं से, के शेल वाला, तो ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करके दूसरे शेल में जंप कर जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो बोर ने ये कहा कि एनर्जी तो हर ऑर्बिट की फिक्स रहती है, लेकिन अगर कोई एटम हीट एब्जॉर्ब करता है तो लोअर शेल का, लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है हायर एनर्जी शेल में, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ट्रांजिट, ओके, कैन ओनली डू ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल। और जब वो एनर्जी लूज करते हैं तो लोअर एनर्जी शेल से, सॉरी, हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में वो जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा ट्रांजिशन होता है इन एटम्स में, जो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता रहता है अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, स्टेबिलिटी। तो उन्होंने ये कहा कि बेशक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और उनके बीच अट्रैक्शन होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कर जाना चाहिए। तो हाउ एटम्स आर स्टेबल, उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ रोटेट करती है, जब कोई चीज़ रिवॉल्व करती है, तो उसमें ना एक फोर्स लगता है सेंटर से, ठीक है, जो उसको पेरिफेरी की तरफ ही पुश करता है कि पेरिफेरी की तरफ रहो। जब हम दही को चलाते हैं तो हल्के पार्टिकल्स ऊपर ही रहते हैं ना, सेंटर फोर्स लगाता है ऊपर आने को। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो सेंटर से एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही हल्के होते हैं, जो उनको ऊपर रहने देता है। बेशक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन कि अंदर आओ न्यूक्लियस के अंदर, बट दे आर रिवॉल्विंग, तो उनके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि ज्यादा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा है, तो उनको बैलेंस रखता है, ऊपर के ऊपर ही रखता है। तो नील्स जो बोर थे, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ड्यू टू दिस रिवॉल्विंग फोर्स, ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एटम्स आर स्टेबल, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रहते हैं और एटम्स आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात उन्होंने ये समझाया बोरबरी ने कि अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठा कि इन ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इकट्ठे, ओके। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस किया। क्या डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया उन्होंने कहा, और ये स्कीम कहलाई उनकी बोरबरी स्कीम, ठीक है। बोरबरी स्कीम क्या थी, उन्होंने कहा 2n²। उन्होंने एक रूल बताया 2n² का, जिसके अकॉर्डिंग 2n² रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो इस लॉ के अनुसार होती है, बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग, जहाँ पर ये 1 2 3 है शेल नेम नंबर, ठीक है। तो n = 1 रखते हैं अगर हम इस फॉर्मूले में, 2n² वेयर n = 1 2 3 4, n बराबर हम पहले शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर दूसरे के लिए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो अगर हम रखते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 हो सकते हैं, सेकंड में 8 हो सकते हैं, 3 में 18 एंड 4 में 32। तो these all are the maximum capacity of an orbit to contain electrons। तो नील्स बोर ने बोरबरी स्कीम भी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं शेल्स में। 2n² रूल हमें ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम इनमें फिल कर सकते हैं, कितने कैपेसिटी है हर शेल की, कितने इलेक्ट्रॉन्स इनमें आपस में रह सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि 2n² के हिसाब से K में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, 2, L में 8, M में 18 एंड N में
32। ओके, तो 2n² वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमें ये बता रहे हैं कि शेल्स की कैपेसिटी कितने की होती है कंटेन करने की। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड बोरबरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हम K, L, M, N इन शेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे K में 2 से ज्यादा नहीं फिल कर सकते हैं। अगर आप फिल ही नहीं हो सकते, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो अगर मैं K में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहती हूँ तो 2 से ज्यादा नहीं कर सकती। L में करना चाहती हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं 8 से ज्यादा नहीं कर सकती। M में 18 से ज्यादा नहीं कर सकती और N में 32 से ज्यादा नहीं कर सकती। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन दिस कैटेगरी ऑक्टेट रूल। ऑक्ट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ये कहा कि सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए 2, फर्स्ट शेल में 2 फिल किए, सेकंड में 8 किए। ओके, एंड थर्ड में मैंने किए 3। गॉट इट? तो उन्होंने ये कहा, अब देखो इसके पास सपोज ऐसे समझाते हैं, सपोज इस किसी एक एलिमेंट है A, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है। एक एलिमेंट है A, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है। हमें बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है शेल्स में। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, हमने 11 में से पहला ऐसे लिख लिया K, L, M, N। ठीक है, अब 2n² वाला रूल लगाया। पहले में कितने फिल कर सकते हैं हम? 2। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए, 9 बचे हमारे पास। सेकंड में हम मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 8। अब 8 और 2 10 तो भर गए, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1। हमने क्या देखा यहाँ पर? हम क्या करते हैं, बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट को ये इलेक्ट्रॉन्स बांट दिए गए हैं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट वी डू, हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम। ओके, तो फर्स्ट शेल में कितने भरे जा सकते हैं? 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। कंप्लीट हो गया, 8 और 10 11। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म हो गए और कितने शेल बनेंगे? केवल 3 शेल बनेंगे इसके। गॉट इट? तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स खत्म, शेल्स बस इतने ही बनेंगे, 3 बन रहे हैं, 4 भी बन सकते हैं किसी में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो जो लास्ट शेल होता है, ओके, द लास्ट शेल, it is called valence shell. Last shell is called valence shell और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? गॉट इट? यस। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो जो लास्ट शेल बनता है, गॉट इट, लास्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? हर एटम में लास्ट शेल बन रहा है तो उस लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और हर एलिमेंट ये लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए लूज गेन या शेयर करता है दूसरे एलिमेंट के साथ।
ओके, रिएक्शन करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, बॉन्डिंग बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर वो एलिमेंट लूज गेन कर रहा है तो दिस इज, वो कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। लूज कर रहा है तो उस पे लूज करता है, कोई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आयंस बन जाते हैं। व्हाट आर आयंस? एनीथिंग विच इज चार्ज। अगर कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कोई शेयर करता है आपस में तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता। शेयर में कोई परमानेंटली लूज गेन नहीं करते हैं, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस नेचर में जितने भी एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। गॉट इट? तो दिस इज हाउ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एंड दिस इज हाउ एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर। एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल रूप में जुड़ के भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जुड़ते ही क्यों हैं? फॉर स्टेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और इलेक्ट्रॉन्स को KLMN में डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। So this is called electronic configuration. Okay, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन आता है एग्जाम में लिखने के लिए कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम। गॉट इट? सो डियर स्टूडेंट्स, तो जो बोरबरी थे उन्होंने, सॉरी जो नील्स बोर थे, उन्होंने कितनी कुछ चीजें समझा दी हमें। सबसे पहले आज की वीडियो में हमने ये समझा एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डाल्टन ने हमें ये बताया कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे छोटे मटेरियल होते हैं, सबसे छोटे कंस्टिट्यूएंट होते हैं मैटर के, है ना। और उन्होंने कहा, डाल्टन ने, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन ये सब जो पोस्टुलेट्स थे उनके बाद में गलत हुए और ठीक है, उनमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया। तो यहाँ पर हम एटम का स्ट्रक्चर, एटम पढ़ लिया हमने, एटम सबसे छोटे हैं, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हर साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। हमारे सिलेबस में सबसे पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है वाटरमेलन की तरह बताया उन्होंने। फिर हमारे पास रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने बताया कि जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उसके अंदर चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी एटम की नहीं समझा पाए। फिर नील्स बोर आए। नील्स बोर ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। नील्स बोर ने सब कुछ बताया कि एटम्स ना ग्रुप में रोटेट नहीं, रिवॉल्व नहीं करते हैं, उनकी पर्टिकुलर क्लास होती है। उस क्लास की कैपेसिटी किसके अकॉर्डिंग बताई हमने? बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की। सो this is all about the models and atomic structure. Okay, now coming to next topic of this video, what is atomic number? What is atomic number? जैसे अभी मैंने तुमसे कहा ना कि हमने एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स बांट दिए हैं, तुम्हारे पास 11 है, तुम्हारे पास 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एटम को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए हैं। ठीक है, सपोज हाइड्रोजन को 1 दिया है हमने, हीलियम को 2 दिए हैं, लिथियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो क्या होता है, हर एटम के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो किसी एलिमेंट के पास, किसी एटम के पास
कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं है, सपोज इनके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है इस एटम पे, तो इस पे 10 ही नेगेटिव चार्ज होंगे। गॉट इट? तो किसी न्यूट्रल एटम पे जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होगी एक न्यूट्रल एटम के लिए, कि अब तुम समझ गए हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज डेजिग्नेटेड बाय Z, और ये इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक न्यूट्रल एटम के लिए अगर उस पे कोई ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ है, एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। गॉट इट? लेकिन अगर वो एटम आयन रूप में है, ठीक है, सपोज एक एटम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, और 2 ही प्रोटॉन है, और उसने हमेशा याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होते हैं शेल्स में, तो इलेक्ट्रॉन ही लूज गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है तो प्रोटॉन निकल नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत सराउंडेड रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है। क्योंकि ये सबसे बाहर होते हैं, बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लूज या गेन करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। मैंने बताया था 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये एलिमेंट, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, ओके। तो इस पे अगर कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट है, वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो उस पे उतना ही एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। गॉट इट? अगर कोई एलिमेंट, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर कोई एलिमेंट अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस पे उतना ही, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए उतना ही एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ इट कंटेन्स चार्ज। व्हाट इज चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव, और नो चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। नाउ इट कंटेन्स चार्ज, सो नाउ इट इज कॉल्ड ion. Anything which has charge, ion. Now it is not neutral. What is neutral? Positive और negative जब बराबर हो. Now it contains more protons as compared to electrons. तो हमेशा याद रखना, एक न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या प्रोटॉन्स का नंबर, लेकिन एक आयन के लिए प्रोटॉन्स का नंबर। गॉट इट? तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, अब तुमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज चेंज नहीं हो रहा, तो हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज और गेन हो सकते हैं, तो किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। गॉट इट? एटॉमिक नंबर इज clear now. Now atomic mass. Atomic mass number क्या होता है कि मैंने बताया एक एटम का सबसे भारी पार्ट, सबसे हैवी पार्ट कौन होता है? न्यूक्लियस। ओके, सबसे सेंटर में, क्योंकि ये सबसे हल्का होता है, एम्प्टी होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस सॉलिड पार्ट होता है और हैवियर पार्ट होता है एटम का, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर अभी तुमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक एटम का जो वेट है, मास है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस के ऊपर, बिकॉज न्यूक्लियस इज हैवीएस्ट इन एटम, गॉट इट। और न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, ओके। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास, एक एटम का मास कितना है, और मास किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, गॉट इट। तो हमने यह देखा एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये आपका रिलेशन निकल के आया, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। सपोज करो अगर मेरे को न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है कि किसी एटम में न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, तो मैं क्या करूंगी? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एंड व्हाट इज प्रोटॉन नंबर? एटॉमिक नंबर। अभी बताया था ना प्रोटॉन का नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन का नंबर मुझे निकालना है a माइनस जेड, ओके। व्हाट इज z? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज a? एटॉमिक मास नंबर एंड न्यूट्रॉन का नंबर, गॉट इट। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स नंबर, ओके। So this is all about the atomic the models, atomic number and atomic mass number. Now we will describe isotopes, isobars and isotones, got it। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट के एटम्स, ओके, द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। एलिमेंट्स के वो एटम्स, ठीक है, एक ही एलिमेंट के सेम एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, वो आपस में आइसोटोप कहलाते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। देखो इसमें आइसोटोप पी आ रहा है, आइसोबार ए आ रहा है, आइसोटोन एन आ रहा है। आइसोटोप्स पी आ रहा है, आइसोबार में ए आ रहा है इधर, और इसमें एन आ रहा है। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है। प्रोटॉन्स का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब आइसोबार ए आ रहा है इधर, ए से हम किसको डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास को। तो आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक मास सेम होता है, गॉट इट। आइसोटोन्स एन आ रहा है इधर, जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। अभी मैंने बताया तुम लोगों को न्यूट्रॉन्स का नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? a माइनस जेड करके, ठीक है। देखो किसी भी सिंबल में
किसी भी सिंबल में एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है और Z नीचे लिखा जाता है। एटॉमिक मास टॉप पे और एटॉमिक नंबर नीचे। तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। गॉट इट। तो अगर मैं एटॉमिक A माइनस Z कर दूं तो इस वाले एलिमेंट के लिए मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकल के आ गए? 12। गॉट इट। तो जैसे मैंने बताया किसी भी सिंबल में बॉटम पे अपन क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, और टॉप पे क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। यहाँ पर जनरली एग्जाम में Z के बदले प्रोटॉन का नंबर भी दे दिया जा सकता है या इलेक्ट्रॉन का नंबर भी दे दिया जा सकता है। तो प्रोटॉन का नंबर याद रखना, हमेशा प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर एंड A इज इक्वल टू एटॉमिक मास। और मैंने तुम्हें बताया न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकाल सकते हो? A माइनस Z करके। तो इसमें सोडियम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12। तो अगर डिफरेंट एटम्स दे रखे हैं और तुम्हें पता ना लगाना है कि आइसोटोन है या नहीं है, तो सब में A माइनस Z करके देखो सबसे पहले। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ रहे होंगे वो आपस में आइसोटोन कहलाते हैं। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोप एंड आइसोबार एंड आइसोटोन। ठीक है। ओके। आइसोटोप्स के यूजेस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइसोटोप्स के क्या यूजेस होते हैं? जैसे देखो आइसोटोप, एक आइसोटोप का मैं एग्जांपल बताती हूँ तुम्हें। हाइड्रोजन जो होता है ना, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में। आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के टुकड़े कर दो, ठीक है, तो सभी में हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लेकिन हो सकता है सबका मास अलग अलग हो। जैसे एक एप्पल को हम कट कर दें तो रहेगा तो वो एप्पल ही पीसेस में, लेकिन हो सकता है एक पीस मोटा हो, एक पीस पतला हो। ठीक है, ये होते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के देखो एटॉमिक नंबर सेम होंगे। मैंने अभी बताया ना P आ रहा है इधर, P मतलब प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो देखो इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। ए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसको कहते हैं हम प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम और इसको कहते हैं हम ट्रिटियम। ठीक है। अब जो आइसोटोप्स होते हैं ना जनरली उनके क्या यूजेस होते हैं? जैसे यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम का जो है वो रेडियो एक्टिव होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में आता है। कोबाल्ट का आइसोटोप, C से शुरू हो रहा है तो कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है। आयोडीन का आइसोटोप है तो गॉइटर के ट्रीटमेंट के काम में आता है। ठीक है। सोडियम का आइसोटोप है वो आपका जो ब्लड रेगुलेशन होता है, आपका जो मिनरल का जो बैलेंस होता है उसको काम में लाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ना एक चीज हम कह सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट अपने आइसोटोपिक रूप में पाया जा रहा है, तो जैसे एक एप्पल है, मैंने उसको कट कर दिया 3-4 पीसेस में और मैं कहूँ इस एप्पल का वेट बताओ तो तुम्हें सारे ये जितने भी पीसेस हैं उसको कंबाइन करके मास निकालोगे। तो ऐसे ही एक एलिमेंट का जो मास है वो उसके आइसोटोप्स के मास का एवरेज होता है। गॉट इट। तो हमेशा याद रखना एटॉमिक मास होता है ना जनरली वो एवरेज होता है आइसोटोप्स के मास का। ओके। तो ठीक है, तो एवरेज निकाला जाता है। तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि एक आइसोटोप, एक एलिमेंट दे रखा है उसके कितने आइसोटोप्स हैं तो एवरेज एटॉमिक मास बताओ। तो तुम क्या करोगे? सारे आइसोटोप्स के मास को ऐड कर दोगे और एवरेज निकाल दोगे उसके, क्योंकि एक एलिमेंट का मास तो तभी निकलेगा ना। सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ना डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है इधर, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है ना, केमिकल नेचर तो सेम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोबार एटॉमिक मास सेम होते हैं जैसे कैल्शियम और आर्गन। इनके ना एटॉमिक मास 40-40 होते हैं, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होते हैं 20 और 20 एंड 10 होते हैं। गॉट इट। तो 18 सॉरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
तो तुम लोगों को पूरा इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना होगा कि एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है टोटल। सपोज एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ मैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन सेम है। सपोज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मैंने लिख दिया 3-, ओके। तो नाइट्रोजन एक न्यूट्रल एटम पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि न्यूट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, 7 होते हैं, लेकिन इसने 3 गेन करे हुए हैं। 3- का मतलब क्या है, 3- गेन करे हुए हैं इसने, तो 7। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 10। सबसे पहले ये देखो न्यूट्रल एटम पे कितने थे, 7। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे कितने होते हैं, 7। और इस हमें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, प्रोटॉन्स नहीं करने हैं। तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 7, ठीक है। इसने 3 और गेन कर रखे हैं, तो 10 हो गए। तो और किसी एलिमेंट के 10 निकल के आएंगे अगर, तो वो भी ये दोनों फिर आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर 4 चैप्टर, ओके। एंड आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ओके। ओके, थैंक यू सो मच।